Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today in this video we have the latest Hyundai Tucson. This is Hyundai Tucson diesel which comes with 2-liter engine. Power output is 182 bhp. Torque is around 400 Newton meters. This comes with 8-speed automatic transmission, and this one is the all-wheel drive option. If you look at the badging, it says H-Track. So this is the all-wheel drive version. Then you have petrol version as well. It also has 2-liter petrol engine and power output is around 150 bhp. Torque is around 192 Newton meters and that has 6-speed automatic transmission. If we look at the petrol version, the price starts at 22.3 lakh and the top end is for 23.52 lakh. If we talk about this version, which is the diesel one, it starts at 24.35 and the top end is for 27.02 lakh. So this is the top end version, as I told you, the all-wheel drive option. And in this video, we are going to talk about how it drives, what kind of features do we get, and the space which is not very populated. उसमें इस साइज के बड़े SUVs या 5-सीटर SUVs हम कम देखते हैं उस कंपटीशन से लड़ने के लिए. Is this Tucson equipped? So gear shift is quick, response is nice, pretty grunty, pretty torquey. If you enjoy driving, I think you'll like this Tucson. Let's start this story. And before we do that, please subscribe to our YouTube channel और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, प्लीज़ उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए. So पहले ड्राइव करें. Okay guys, let's start talking about the drive of this car. I've started driving this Hyundai Tucson. As I told you, this is fitted with 2-liter diesel engine and power figure is around 182 bhp. Torque is around 400 Newton meters, or this is fitted with 8-speed transmission, automatic transmission वाला version. इसमें हमें देखने को मिल रहा है. And now let's talk about the initial feel, because the power figures, these specifications पेपर के ऊपर कुछ और होते हैं और रोड्स के ऊपर कैसे ट्रांसलेट होते हैं. We will talk about that now. First thing I'll tell you what I feel is that this feels more like a petrol car rather than diesel. जो refinement है, जो response है, I find it pretty interesting and kind of exciting. Only time you will remember that this is the diesel version जब ये 1500 to 2000 RPM के बीच में about to launch वाले फेज में होती है. वहाँ पर you feel कि हाँ, this is a big car, bulky car, और प्लस ये डीजल है. वहाँ पर थोड़ा सा लैग आपको हल्का सा फील होगा, बट उसके बाद इवन उससे पहले the refinement, the response is something which is impressive. I really like it. I guess हाईवे के ऊपर काफ़ी मज़ेदार कार होने वाली है. If you look at the torque figures and the response, थोड़ा सा शहर के अंदर जो रेड लाइट रेसर्स टाइप के होते हैं उनके लिए देखें थोड़ा सा एक्साइटमेंट है या नहीं. What do you say? Let's do it. So gear shift is quick, response is nice, and overall pretty grunty, pretty torquey. Exciting drive है, मज़ेदार drive है. If you like, if you enjoy driving, I think you'll like this Tucson. And now let's talk about the handling part. वो मुझे यहाँ पर comfortable suspension setup के हिसाब से लगी रहा है. Plus handling के हिसाब से अगर हम कहें तो चिपक के चल रही है, confidence दे रही है. Straight line के ऊपर काफ़ी well balanced इसकी जो feel है. Obviously it won't feel like a sports car, but इस साइज़ के SUV के हिसाब से आई गेस हैंडलिंग आपको अच्छी लगेगी. कॉर्नर्स के ऊपर आपको बॉडी रोल फील होगा, नो डाउट, लेकिन सस्पेंशन का सेटअप आपको अच्छे फर्म साइड पर देखने को मिल रहा है. नॉट टू रिजिड, फर्म, विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट इज वेल. सो अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे ओवरऑल लग रहा है इसकी बॉडी का, इसका फ्रेम का, सो दैट यू गेट गुड हैंडलिंग. If you have followed our recent videos, you must have noticed कि looks के मामले में हम कम बात करते हैं, because most of the times it is subjective and बहुत ज़्यादा radical change अगर ना हो तो वहाँ पर बात करना थोड़ा सा
ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज दोज आर माई ओपिनियन। आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ कार खूबसूरत हो, कुछ ना हो। बट आई वांट टू टॉक अबाउट द टूसॉन्स लुक। वाई? बिकॉज अभी हाल में आपने ज़रूर देखे होंगे टूसॉन के नए लुक के इमेजेस एंड यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड कि क्या कहीं ये वो तो नहीं। दैट्स द इंटरनेशनल मॉडल जिसे हमने देखा है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और My colleagues didn't like it much. I like that look a lot. But यहाँ पे अगर हम इस वाले वर्जन की बात करें, the Tucson which India is getting right now, front grille बड़ा, bold, chrome का काफ़ी इस्तेमाल, again over the top मुझे नहीं लग रहा है। This cascading grille size के हिसाब से और इस लोगो के हिसाब से मुझे bold और अच्छा solid सी फील देता हुआ, SUV वाली फील देता हुआ लग रहा है। प्लस यहाँ पर अगर लाइट्स को आप देखें तो यहाँ पर 5 आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स का पूरा जो क्लस्टर है काफ़ी एलाबोरेट आपको देखने को मिलेगा। एंड देन यू हैव द DRL एज वेल। सो ओवरऑल दिस लुक्स बिग, बोल्ड एंड टिपिकल SUV-ish, नॉट वेरी रैडिकल, नॉट वेरी मिनिमलिस्टिक जैसा हमने कटा और वेन्यू में देखा है। तो उस हिसाब से इसके लुक को हम थोड़ा सटल और थोड़ा सा सोबर कह सकते हैं। And when you take a look at the side profile, वहाँ पर आपको पता चलेगा with my height which is almost 6'3", उस हिसाब से जब आप कंपेयर करेंगे then you'll realize और you can make out कि ये एक big बल्कि कार आपको यहाँ पर नज़र आएगी। So इस सेगमेंट में जिस तरह के SUV साइज़ के हिसाब से चाहिए, I guess this ticks all the boxes। अब क्या करें, अंदर चलते हैं, let's go। Now let's talk about the interior। So यहाँ पर कैसी फील आपको नजर आ रही है? सबसे पहले तो आपको बताऊं पूरा डार्क यहाँ पर थीम है। ऊपर ऑफ वाइट आपको हाफ या रूफ देखने को मिलेगा, बट नीचे पूरा डार्क। डैश की बात करें या साइड्स पैनल की बात करें, सारा कुछ डार्क है। बीच में आपको ब्रश मेटालिक हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल फील आई वुड से स्पोर्टी है, प्लस लॉट्स ऑफ स्पेस। तो हाल फिलहाल में हमने काफ़ी छोटी गाड़ियाँ चलाई हैं, उस हिसाब से ये स्पेशियस अचानक से नोटिस होती है। सो यू लाइक इट। इसके अलावा जो बीच का पैनल है वो भी काफ़ी ब्रॉड सा है। आर्मरेस्ट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, प्लस सनरूफ का साइज़ भी आपको इसमें काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल रहा है, विच इज़ समथिंग विच इंडियन कस्टमर्स आर वांटिंग, लाइकिंग मोर एंड मोर। तो वो तो एक एंगल है ही। फीचर्स की लिस्ट में अगर हम बात करें, यहाँ सबसे पहले हम देखें तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल, बाकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो डिस्प्ले है वो सब आपको इसमें देखने को चेंज करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल मिलेगा। लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें, ऑडियो का कंट्रोल है, प्लस जैसा आपको पता होगा दिस इज़ ऑल्सो फिटेड विद द ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी, और वो फीचर जो है उसके लिए आप वॉइस कंट्रोल भी यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इससे बात भी कर सकते हैं। ओवरऑल इंफोटेनमेंट स्क्रीन इज़ फ्लोटिंग स्क्रीन डिज़ाइन और 8 इंच का साइज़ है इसमें। फील आपको यहाँ पर जो है वो रेगुलर जिस तरह से Hyundai की कार्स हैं उसमें ही देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैं स्क्रीन को नहीं कहूँगा, जो हाल फिलहाल में हमने कई छोटी गाड़ियों में भी देखी है। और यहाँ अगर हम फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर अगेन नेविगेशन और ऑडियो का डिस्प्ले आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिल रहा है। प्लस फील आई वुड से ओके, कॉम्पैक्ट, नॉट टू बैड। इसके नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के सारे बटन्स और नॉब्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल फील इज सॉलिड। इसके अलावा नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल रहा है, USB का एक पॉइंट मिल रहा है, प्लस 12 वोल्ट के 2 आपको पॉइंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। देन यू हैव दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड चेंज करने के लिए, प्लस हिल होल्ड असिस्ट के लिए एंड पार्क असिस्ट। ये सारे बटन्स आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल रहे हैं। सीट इज कंफर्टेबल, स्पेशियस। ओवरऑल फील जो है वो आपको काफ़ी रोबस्ट सा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको 2 कप होल्डर्स, बीच में सामान रखने की अलग से जगह, बड़े बॉटल की यहाँ पर जगह, प्लस आर्मरेस्ट के नीचे भी कुछ चेंज रखने की जगह और सामान रखने की भी आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। वहाँ पर USB के पॉइंट्स वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहे। एयर फिल्टर भी इसमें मुझे ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा है। सो फील स्पोर्टी, फीचर्स ऑलमोस्ट व्हाटएवर यू नीड और यू लुक फॉर इन दिस सेगमेंट, वो सारे आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या बचा है? सेकंड रो स्पेस। वहाँ देखते हैं। मैंने अपने हिसाब से ड्राइविंग सीट जो है वो एडजस्ट कर ली है। लेट्स सी पिछली सीट पे जगह आपको कैसी मिलेगी। So guys, Kranti Sambhav reporting from the second row of Hyundai Tucson। यहाँ पर सबसे पहले बैठते ही
मैं ऑब्वियसली चेक करता हूँ, आई गेस सबकी नज़र भी शायद उसी के ऊपर होगी कि यहाँ पर नी रूम मुझे मिल रहा है कि नहीं। मेरी हाइट के लिए अगर इतना नी रूम है, एवरेज हाइट के लिए ये नी रूम आपको काफ़ी मिलेगा। थाई सपोर्ट ठीक लग रहा है, बैक एंगल भी ठीक है, प्लस ओवरऑल कुशनिंग इज़ नाइस एंड कंफर्टेबल। एंड यू नो इसमें एक और फीचर ये है कि आप इसके बैक को आगे या पीछे कर सकते हैं इन केस यू गेट रिड ऑफ दैट पार्सल ट्रे। इसके अलावा यहाँ पर आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, AC वेंट्स, एक USB का चार्जिंग पॉइंट, मैगजीन रखने के लिए जगह, बॉटल रखने के लिए आपको जगह, हेडरूम अच्छा मिल रहा है विद माय हाइट इज़ वेल। और बीच में जो टनल है वो आपको हल्का सा उठा हुआ फ्लोर जो है नज़र आएगा। सो आई गेस फॉर 2 पीपल रियली कंफर्टेबल, स्पेशियस। और 3 लोगों के लिए मामला थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली बीच वाले पैसेंजर्स को। लेकिन 5 सीटर इसे हम कह सकते हैं, कंफर्टेबल 5 सीटर। लगेज स्पेस अब देखते हैं। So I want to talk about luggage space, लेकिन मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ। आपको सोचेंगे क्यों, और यहाँ पे जब लॉग कार जो कि पार्क खड़ी है उसमें मैं पीछे से अप्रोच कर रहा हूँ, यानी कीज़ मेरे पॉकेट में है, देन दिस कार यू नो अंडरस्टैंड्स कि आप कुछ सामान लेके आए हैं। आप वैसे तो पीछे जाएंगे नहीं बिना मतलब, सो सामान रखने के लिए आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू लुक एट, इफ़ यू रिमूव दिस फ्लैप, और सामान रखने की जगह आपको काफ़ी मिलेगी। 5 सीटर के हिसाब से हम देखें लंबे ट्रिप के लिए, यू कैन स्टोर लॉट्स ऑफ लगेज। तो यहाँ पर ये फीचर देखने को मिलेगा। अब क्या बचा है, अब हमारा वही सवाल यूजुअल, बिंदु कहाँ विश्राम करती है। एंड बिफोर वी आंसर आवर वर्ल्ड फेमस इन इंडिया क्वेश्चन कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, दिस फीचर ऑल्सो। यहाँ पर आप मेरे पॉकेट में की डिटेक्ट किया तो RVM इट जस्ट वेलकम मी। तो बिंदु विश्राम कर रहा है उस स्वीट स्पॉट के ऊपर जहाँ पर ये टूसॉन आती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द सेगमेंट, उसके एक तरफ आप जो 5 सीटर SUVs देख रहे हैं जो सस्ती हैं, चाहे वो हम हैरियर और कंपस की बात करें जो छोटी भी है, बट इस साइज़ के दूसरी जो कार्स हैं वो थोड़ी महंगी हैं। 7 सीटर्स हम अगर देखें फॉर्च्यूनर और एंडेवर, और वहाँ बीच में जो एक स्पेस है वो एक अच्छा स्पेस टूसॉन के लिए ज़रूर नज़र आता है। लेकिन जो असली मज़ेदार वर्जन हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ज़रूर नज़र आता है। बट अदरवाइज़ आई गेस इस सेगमेंट के हिसाब से केपेबल, फीचर रिच और एक बहुत ही फन टू ड्राइव कार आपको ये नज़र आएगी टूसॉन। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी? डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी, एंड शेयर योर ओपिनियन एज वेल। अगर आपको कुछ बात ऐसी लग रही है कि जो आपका नज़रिया हमारे से अलग है, डू लेट अस नो। और सोशल मीडिया के ऊपर यानी फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। बाय बाय।